ठीक है, मैंने कर दिया, स्क्रीन शेयर कर दिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, थैंक यू। You're like ओके, गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट प्रेजेंट हियर। थोड़ा सा एडमिन की तरफ से मेरे को लाइव नहीं किया जा रहा था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, सो थोड़ा सा आपका क्लास लेट स्टार्ट हो रहा है. So today I'm going to talk about Unit 3 Natural Resources and its engineering. Okay, so first thing is, what are the natural resources present on the Earth biosphere? Okay, so some of the listed resources which are present on the Earth biosphere, and continuously we are using these kind of resources. Okay, so you can see here forest resources, water resources, mineral resources, food, energy, land resources, etc. and etc. ठीक है, रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं जो हमारी डेली यूजेज को पूरा करते हैं, एंड आई होप जो हमारे डेली यूजेज को पूरा करते हैं और साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो वेट स्टूडेंट, ओके, सो मैसेजिंग टू द एडमिन. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है आप देखिए पहले. नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स एयर, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, फिशेस, मैराइन लाइफ, बायोमास, all the stuff and all kind of plant and animal present in the earth surface is natural resources. ठीक है, basically resources two types के होते हैं, one is man made and another is natural. man made resources भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से ही लेके बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग अवर मोबाइल फोन. मोबाइल फोन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स, प्लास्टिक से बना हुआ है. वेयर सिलिकॉन चिप्स आर यूज्ड, सिलिकॉन चिप्स का यूज होता है उसके अंदर. सिलिका वो कहाँ से आता है? सिलिका से आता है. सिलिका कहाँ से मिलता है? वो भी नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है. ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज, देयर आर टू काइंड ऑफ रिसोर्सेज व्हिच वी आर using frequently for our daily purposes. Okay, so natural resources, if we talk about natural resources, we can differentiate this into two kinds. One is renewable and another is non-renewable. Okay, so firstly, what is the renewable resource? Renewable resource क्या है? Renewable resources are basically the resources which can be generated again and again. Okay, and in a short span of time they can be reproduced. For example, if hydropower में turbines होती हैं जिस पे water गिराया जाता है, वो रोटेट करता है और हमको क्या देता है? एनर्जी देता है. ओके, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, विंड क्या करता है? टर्बाइंस होती है जो मूव करती है, रोटेट करती है राउंड एंड राउंड, एयर जब एयर का फ्लो होता है. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज कैप्चर्ड and used as electricity. One very important point is sun is the biggest source of energy on the earth atmosphere, earth surface and biosphere, not even in the atmosphere, in the biosphere. Okay, sun जो है हमारा biggest source है एनर्जी का हमारे बायोस्फीयर पे. Okay, you can see some of the renewable resources like solar energy, wind energy, geothermal, biomass from plants, tidal energy. ये सारी की सारी हमारे renewable resources में आते हैं. These are called renewable because they can be regenerated again and again, and recycling and reuse is also possible. And if we want, we can reproduce it, these kind of resources, in a short span of time. Okay, renewable resource जो renew हो सकते हैं. Another is non-renewable resource. This is a very important point. Non-renewable resource which cannot be regenerated, which cannot be remade or regrown. Okay, example से समझो. The example of non-renewable resources are oil, nuclear energy, gas, coal. Fossil fuels. Fossil fuels. What are the fossil fuels? Fossil fuels are diesel, coal, petroleum products, etc. Okay, these kind of fossil fuels cannot be regenerated in a short span of time. Very long duration.
is required to reproduce these resources. As you know, जब प्लांट डिके हुए थे, बहुत से प्लांट्स का डिके हो गया, वो सॉइल के नीचे दबे रहे, और दबे होने के बाद आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल और पेट्रोल और डीजल एक्सेट्रा. ठीक है, वो भी तो प्लांट से ही है, प्लांट्स मटेरियल से ही वो कोल और पेट्रोल बना है कहीं ना कहीं. ठीक है, बट वी कैन नॉट जनरेट कोल, वी कैन नॉट जनरेट पेट्रोल और डीजल. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव सोर्स. एक टाइम आएगा जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब कोल खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा. तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल हियर. तो फिर वहां पे हम बायोडीजल का कॉन्सेप्ट लाते हैं, जेट्रोफा से जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ ऑयल बियरिंग बायोफ्यूल क्रॉप. ओके, उसको उससे हम ऑयल निकालते हैं जेट्रोफा से, और अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं चलने के लिए. एट द प्लेस ऑफ जो भी हमारा fossil fuel है. Okay, so non-renewable resources are not environmental friendly and can have serious effect on human health. As you know, in automobile industry क्या होता है, when we use automobiles, when we use our bike or car, some amount of waste gases are generated due to the combustion of fuel, fossil fuel, and that kind of waste gas or hazardous gas is very harmful for us, for both flora and fauna. जो भी प्लांट एनिमल है दोनों को क्या करते हैं, वो सेकेंड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, and when the primary pollutants goes into the environment, they combine together and form secondary pollutants, and that secondary pollutants क्या है, एसिड रेन के साथ बारिश में जो आता है. ओके, तो that's why the non-renewable resources are not environmental friendly. कोयले को जलाया जाता है, कोयले को भी जलाया जाता है ना, कोयले से भी बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है. ठीक है, जो कि environmental friendly नहीं है. So that's why these are called as non-renewable resources. ठीक है, because they cannot be renewed. Basic फंडा जो है, the renewable can be regenerated and non-renewable cannot be regenerated. Okay, okay. तो अब यहाँ पे आता है what are the alternative source. ऐसा एनर्जी क्या है, जैसे अल्टरनेटिव सोर्स की बात मैंने की, जेट्रोफा कर्कस की बात की. जेट्रोफा के प्लांट को अगर हम यूज करते हैं फॉर एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बायोडीजल, ठीक है, वो यूज हो सकता है. फिर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे. ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, मैं इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा. न्यूक्लियर इज नाउ एज अ यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें क्या होता है, बहुत सा एनर्जी, थोड़े से अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस से बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी निकलती है ड्यू टू फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस. सो ये फिजन और फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम कैप्चर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज करते हैं. तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको. मैं फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, गैस की हम जब बात करते हैं वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलता है. ठीक है, so basically we are surrounded by the natural resources that may be renewable or not renewable, but हमारा जो बेसिक हमारा स्टफ है वो हमारा कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्स से मिलता है. अब there are so many kind of natural resources available on the earth's surface. ठीक है, उसमें से कुछ रिसोर्सेज के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा जो कि आपको पढ़ना है. पहला है फॉरेस्ट रिसोर्सेज. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इसके पहले वाली क्लास में जो मैंने आपकी क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया था. ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर के बारे में बताया था. लेकिन इस क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, नॉट अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है. ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं क्योंकि दिस इज अ नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, अब पता है आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में
देखना नेक्स्ट स्लाइड में 33% scientists estimate that India should ideally have 33% of its land under forest. Today we have only about 12%. Thus we need not only to protect existing forests but also to increase our forest cover. हमको ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को कवर करना है, मतलब क्योंकि बिकॉज forest are plant consume carbon dioxide and produce oxygen O2. ओके अभी क्या है 12% हमारा हो गया फॉरेस्ट कवर and the population is increasing day by day, as you know. Okay, so when the population increase then the demand increased. ठीक है, और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो कहाँ से वो पूरी होगी, नेचुरल रिसोर्स से. तो उसने एक फॉरेस्ट रिसोर्स, फॉर एग्जांपल लाइव एग्जांपल लो, वी आर यूजिंग टेबल एंड चेयर टू सिट फॉर आवर क्लास, टू टेक आवर क्लास. इफ अगर वहां पे पॉपुलेशन बढ़ता गया तो उसको भी टेबल चेयर चाहिए, तो कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट रिसोर्स से आएगा, प्लांट से आएगा, ट्री से आएगा, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, फूड के लिए हम फॉरेस्ट पे रिसोर्स पे डिपेंड होते हैं. जैसे इफ यू टॉक अबाउट द कश्मीर, कश्मीर में क्या होता है, एप्पल्स का फॉरेस्ट होता है. ठीक है, यूपीएमपी में चले जाए मैंगोज, ठीक है, गुआवा. तो बेसिकली ये जो फॉरेस्ट रिसोर्स है हमको शेल्टर भी देता है, फूड भी देता है, सब कुछ प्रोवाइड करता है. सो टेक्निकली दैट्स व्हाई वी हैव टू कंजर्व दिस फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है, अब यूजेज क्या क्या है फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट जहां भी होगा वहां पे रेनफॉल का अमाउंट बढ़ जाता है. फॉरेस्ट जहां भी होता है वहां पे रेनफॉल का अमाउंट बढ़ जाता है. ठीक है, दे इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट, वो मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाते हैं, बिकॉज जहाँ पे प्लांट रहेगा वहां पे बारिश होगी तो मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी बढ़ेगा. ठीक है, और उस एरिया में जब मॉइस्चर कंटेंट होता है तो प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है. जैसे मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल में लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि वाटर जो साइकिल होती है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल होती है, उसमें जो वाटर होता है वो प्रेसिपिटेशन से जाता है. ठीक है, एडिशनल प्रेसिपिटेशन हुआ. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हॉट हुआ वो वाटर सन की हीट से, फिर वो भाप बन के फिर से रेनफॉल में कन्वर्ट हुआ कंडेंसेशन के थ्रू. ठीक है, कंडेंसेशन होता है रेनफॉल में कन्वर्ट होना, उस क्लाउड का रेन्स में कन्वर्ट होना, फिर प्रेसिपिटेट हो गया तो वो जमीन पे आ गया. ठीक है, सो दे इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट. जब मॉइस्चर कंटेंट एनवायरनमेंट में ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा. ठीक है, दे मिनिमाइज the extreme variation in the climatic conditions and make the climate more equable. Okay, they control floods during heavy rain by observing excessive water. As you know, सुंदरवन डेल्टा की मैं बात करता हूँ. सुंदरवन डेल्टा में क्या है कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनमें रूट्स भी होंगे, और रूट्स में क्या होता है, सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है. इफ द सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी इज मोर देन श्योर देयर इज नो सॉइल इरोजन. अब सी शोर पे चले जाओ, जैसे चाहे आप गोवा का सी शोर बात करो या फिर बॉम्बे की बात करो या कहीं के भी सी शोर की बात करो. ठीक है, तो मेन जगह पे क्या होता है सी शोर पे, वो जो वाटर आता है, जो वाटर लेवल होता है, ठीक है, वो कितना भी मतलब पानी बढ़ जाए लेकिन वहां पे हमारा जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होने पाता है. They prevent soil erosion by checking the forces are flowing, by checking the force and flowing of the water. ठीक है, the thick roots of the trees absorb large quantity of water, thus forests help in the flow of rivers and streams. ठीक है, ठीक है, एक तो हो गया सॉइल इरोजन को वो रोकता है. दूसरा होता है हेल्प इन फ्लो ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, हेल्प करता है रिवर और स्ट्रीम की फ्लो में. ठीक है, अब देखो और देयर आर सम, they offer hunting grounds, they provide shelter to wild animals and birds. मैंने इकोसिस्टम में बताया था कि there is a forest ecosystem having producer, consumer and decomposer, and all kind of consumers are there, primary, secondary and tertiary. Okay,
So I'm not going to say in the detail, but they provide shelter to wild animals and birds. So you can understand these terms. They improve the sanitary condition of a place. They improve the sanitary condition of a place. Like नीम के प्लांट की हम बात करते हैं. The botanical name is Directa indica. Okay. नीम का प्लांट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मस्कीटोज ज्यादा नहीं आते, बिकॉज वो बिटर होता है, कड़वा होता है उसका टेस्ट. ठीक है. तो उसके लीव्स का, उसकी स्टेम का, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस रिप्रोड्यूस नहीं होने पाते या प्रोड्यूस नहीं होने पाते. सो दे आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. They facilitate human existence by providing oxygen. As you know, they consume carbon dioxide and produce oxygen continuously. And this is the main role of forest, okay, ecosystem. क्योंकि ऑक्सीजन वो इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाना जरूरी है. अदरवाइज इफ द कार्बन डाइऑक्साइड, इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज, द हीट ऑफ द सन, जो हीट आती है सन की, दैट कैन बी ट्रैप्ड इनटू बाय द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. एंड द काइंड ऑफ हीट ट्रैप्ड हियर कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. Okay, when the glacier melts, the rise in sea levels cause inundation of coastal areas that cause flood. So all these terms are associated, we can say, like climate change. Okay, तो climate change को बढ़ावा देता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, जो कि important point है यूजेज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज का. ओके. सो दे आल्सो प्रोवाइड हर्बल मेडिसिन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. हर्बल मेडिसिन्स आर यूज्ड इन आवर डेली पर्पस. अभी भी बहुत सा फॉरेस्ट रिसोर्स है जिसको जहाँ से हर्बल मेडिसिन लिया जाता है और उसको पैकेट्स में करके या बहुत सारे प्रोसेस में करके लिक्विड बना के सेल किया जाता है फॉर आवर डेली पर्पस. हर्बल का मतलब हो गया जो प्लांट मटेरियल से मिलके, मेडिसिन विच इज मेड अप बाय द प्लांट मटेरियल. ओके. रीजन फॉर लार्ज स्केल डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. एक मिनट, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आंसर है क्या? तो वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. क्लास हो गई स्टार्ट. विल देयर इज अ क्लास टुडे? ओके सर. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर. नहीं, हमने शुरू किया है. सर प्रीवियस क्लास में भी है फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं था. फिर मैंने वही बात बताया ना कि पिछली क्लास में फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में बताया गया था आपको. ओके. बुक्स के लिए ना एक आपका लिंक है जिसमें आपको इराक बलूचा की बुक मिल जाएगी. ठीक है, ये मैंने शेयर किया है. इसमें आप देखिए, आपको इराक बलूचा की इंग्लिश मीडियम में एक बुक मिल जाएगी. अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. सो यू कैन परचेज दैट आल्सो. ठीक है, नहीं तो आप अगर पीडीएफ से पढ़ सकते हो, दैट्स गुड. देखिए यहाँ पे जो एडमिन वाले क्वेश्चन है, बुक कब आएगी एंड ऑल, वो आपको देखना पड़ेगा. वो आपको एसओएल से के एडमिन से बात करना पड़ेगा. बाकी आप एसओएल की वेबसाइट पे जाना. एसओएल की वेबसाइट पे कहीं पे दोनों दिया हुआ है, बुक हिंदी इंग्लिश का पीडीएफ मटेरियल दिया हुआ है. आई हैव सीन दैट. ठीक है, वो कवर करता है आपके सिलेबस को. बेसिकली आपको सिलेबस कवर करना है, बुक कोई भी हो. एमवीएस की कोई भी बुक ले लो, इराक बलूचा की भी ले लो, बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है, तो उसमें आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाई करना है. ठीक है, चलो लेट अस कम ऑन द स्लाइड्स. ओके. रीजन फॉर द लार्ज स्केल डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट में क्या है हमारा? कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट फायर्स है, माइनिंग एक्टिविटी इन फॉरेस्ट एरिया है. ठीक है,
Forest diseases are also partly responsible for depletion of the forest है. ठीक है. So these are the activities related with the depletion of the forest. जिसमें forest fire बहुत main होता है, because in all over the India and all over the world every year forest fire occurs and it causes big amount of forest depletion every year, because वो natural होता है फॉरेस्ट फायर, और जब फॉरेस्ट फायर होता है तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट उसके चपेट में आ जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. ओके, लेट्स गो अहेड. Adverse effects of depletion of the trees. It has contributed to rise in temperature. It has contributed to lesser precipitation. It is responsible for increased rate of soil erosion. It is responsible for increase in the frequency and volume of flood. ठीक है. राइज इन टेम्परेचर कैसे होता है डिप्लीशन ऑफ ट्रीज से? मैंने पहले बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर, कि अगर फॉरेस्ट कट गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमेन करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एजेंट टू ट्रैप द हीट. जो सन की हीट आती है, जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वो नहीं होने देता. उससे क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज, लेसर प्रेसिपिटेशन. यहाँ पे ट्रीज कम होगा, वहां पे मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो कम से कम बारिश होगी. It is responsible for the increased rate of soil erosion. सॉइल इरोजन की रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि वहां पे उनकी जो रूट्स होगी उनसे सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी. ठीक है. इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लड्स. लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, बिकॉज जब फ्लड आता है तो सॉइल प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है. लॉस इन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको नेक्स्ट जो आपकी यूनिट होगी उसमें बायोडाइवर्सिटी डिस्कस होगी. Extinction of the several species of plant and animals. It has caused imbalance in the ecosystem. ठीक है. imbalance प्रोड्यूस कर देता है इकोसिस्टम. ठीक है. How to conserve the forest? Regulated and planned cutting of the tree. Reforestation and afforestation. Similar kind of meaning is there. Reforestation and afforestation का similar meaning ही होता है. वो होता है हमारा plantation of the trees. Development green belts around the cities. सिटी के चारों तरफ हमको ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप करना है. चेक ऑन माइनिंग एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया. इफ एनी काइंड ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जैसे कि अभी रिसेंटली हमको पता है कि वहाँ पे एमपी के किसी एरिया में फॉरेस्ट एक्टिविटीज, फॉरेस्ट माइनिंग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे एनजीओ और इन लोगों ने अपोज किया था कि वहाँ पे कुछ नहीं बनना चाहिए इस तरह का. ठीक है. इस तरह की माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट. एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट. ओके. प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट इज बाय द वे ऑफ, वेट, इज देयर एनी एडमिन की तरफ से कॉल आ रहा है, सो स्टूडेंट प्लीज वेट. एसओएल एडमिन कॉल कर रहे हैं, तो मैं एक बार उनके कॉल को रिसीव कर लेता हूँ. मे बी समथिंग इज इम्पोर्टेंट देयर. Yes, students, I'm getting call from admin, so please wait.
ओके स्टूडेंट, सो ये हो गया हमारा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फिर हम इसकी आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा हाँ, यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। फॉरेस्ट्री को जब यूज करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, अगर फॉरेस्ट को हम लगाते हैं तो वो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। मतलब अगर हम व्हीट एंड राइस के फील्ड में हम बम्बू प्लांटेशन कर दे तो वो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। इंडिया में अभी एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लैंड कैपेसिटी कम है, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। इफ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग देन डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज। अब डिमांड जब इंक्रीज हो रहा है तो हाउ टू कंट्रोल दैट काइंड ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड, तो वहां पे हम एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बम्बू प्लांटेशन कर दें या कोई फ्रूट लगा दें या कुछ ऐसा लगा दें, ठीक है, उसके थ्रू किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स है, डेवलपमेंट ऑफ सीड बैंक्स है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, प्रॉपर रूल ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, ये सब है। फिर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सिंपली हैविंग मीनिंग कटिंग ऑफ ट्रीज। कटिंग ऑफ ट्री हमारा डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कटिंग ऑफ ट्री, cutting of trees is called as a deforestation. You can see here. कॉजेज क्या हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, इसके बारे में मैंने पूरा भी डिस्कस किया। डिजर्टिफिकेशन है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो डेजर्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, डेजर्ट फॉर्मेशन को बढ़ाता है, वो हमारा डिजर्टिफिकेशन होता है। फिर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंज्यूम हो रहा था वो कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब का कंजम्पशन जब कम हो जाएगा तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा, वहां पे प्रॉब्लम ये आएगा कि ट्रैपिंग ऑफ द हीट, फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ओके। फिर डैमेज टू इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, क्या क्या चीज होता है, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन इन द सॉइल मॉइस्चर होता है। रिडक्शन इन सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। हाँ, कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि ये हो गया। एक्चुअली वो क्या था ना, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम था। प्लांट इकोसिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था, मैराइन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया, चेक ऑन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू द फॉरेस्ट लैंड, प्रोहिबिशन ऑफ सेटिंग अप ऑफ द एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट लैंड। हम प्रोहिबिट कर दें कि हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे फॉरेस्ट लैंड में। चेक ऑन रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, ठीक है। कंट्रोल्ड माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया, कंट्रोल्ड माइनिंग कैसे करनी है फॉरेस्ट एरिया में। चेक ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इन द फॉरेस्ट एरिया, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फिर आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के बारे में एज यू नो, इकोसिस्टम में भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस एंड व्हाट हाउ मच the amount of water is available as a fresh water. Only 0.07% of the water is available for our daily consumption as a fresh water, and the remaining part is kept in is locked into the ice caps, that is 2.05%, ठीक है। तो बहुत कम अमाउंट का वाटर है जो हमारे पास अवेलेबल है ड्रिंक करने के लिए। with the growth of the human population there is an increasing need for the larger amount of water. जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इंक्रीज बढ़ती जा रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ती जा रही है, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है। और डिमांड बढ़ेगी तो हमको ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए पीने के लिए, अगर बाथिंग पर्पज है, बहुत सारे पर्पज होते हैं उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पे होता है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर अकर्स एट वेरियस लेवल। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स एट वेरियस लेवल, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम एक्सेस में यूज करते हैं तो वो हमारा ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है। फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर पोल्यूट्स, जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्रीकल्चर पोल्यूट्स सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर स्टोर्स बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। इफ यू यूज एक्सेसिव
chemical fertilizers on the surface of the earth. Some of the fertilizers is absorbed by the plants and remaining part which is left on the ground contaminate our soil and water both. कैसे करता है? वो जो रिमेनिंग पार्ट का हमारा रहेगा वो हमारे वाटर में जाएगा, वहां पे जाकर के वाटर के इकोसिस्टम को खराब करेगा, फिश के अंदर चला जाएगा. वी ईट फिश, जो हम लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो फिश खाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिश के थ्रू वो मटेरियल, वो पेस्टिसाइड, वो हर्बिसाइड या वो आपके उसमें चला गया. तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर के साथ हैं, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटा करके हमको यूज करना चाहिए बायो फर्टिलाइजर्स का. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मेथड्स सच एज द यूज ऑफ बायोमास एज फर्टिलाइजर एंड नॉन टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स सच एज नीम प्रोडक्ट्स रिड्यूसेस द एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, क्लियर है? Industry tend to maximize short-term economic gains by not bothering about its liquid waste and releasing it into the streams, rivers, seas, etc. ठीक है. Flood की बात करते हैं. Flood is basically when the large amount of land is when the land is inundated with the large amount of water. That is called as a flood. Flood have been a serious environmental hazard from centuries. डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज ऑफ द फ्लड, बिकॉज जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया में क्या होगा, वो रूट की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है. ठीक है, जब सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो फ्लड कॉज करेगी. ठीक है, वो फ्लड कॉज करता है. Rivers changes its course during floods and tons of valuable soil is lost to the sea. As the forests are degraded, rainwater no longer percolates. ठीक है, slowly into the subsoil there, but runs off down the mountain side bearing large amount of topsoil. इंडिया में अगर आप देखो तो एवरी ईयर इंडिया को फ्लड हिट करता है. कहीं बिहार का एरिया, कहीं केरला का एरिया, कहीं उड़ीसा का एरिया, कहीं ना कहीं बाढ़ आती ही आती है. ये जो फ्लड आता है वो लार्ज अमाउंट में ह्यूमंस को डिस्टर्ब करता ही करता है. ठीक है, इन एवरी सीजन, इन एवरी ईयर इंडिया में फ्लड आती ही आती है. ठीक है, फिर उसके बाद एक ड्रॉट की हम बात करेंगे जिसको हम सूखा कहते हैं. As you know that the rain is unpredictable in India. अभी का एग्जांपल ले लो, वेदर फोरकास्ट IMD का था, दिल्ली में बारिश होने वाली, अभी नहीं हुआ, अभी 2 दिन के बाद का वेदर फोरकास्ट है. तो nobody know कि where the wind direction changes and how much frequently the cloud formation and all. Okay, so we can only estimate that due to this kind of wind direction and cloud temperature in the area, in this area some rains, कुछ बारिश हो सकती है, कहीं पे नहीं हो सकती है. ठीक है, तो ये ड्रॉट होता है हमारा. वन ऑफ द फैक्टर दैट वर्सन द इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट इज डिफॉरेस्टेशन. ड्रॉट इज one of the major problem in our country due to unpredictable climatic condition or due to the failure of one and more monsoon. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाटर स्कैरसिटी. अगर हम 2025 में देखेंगे तो इंडिया का बहुत सारा पार्ट, चाइना का हाफ एंड हाफ पार्ट, पूरा का पूरा वाटर स्कैरसिटी में हो जाएगा. फ्रेश वाटर के लिए वाटर तो होगा बट फ्रेश वाटर नहीं होगा. ठीक है, ये इंडियन इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का एक डेटा है. सो वाटर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू मैनेज द वाटर. ठीक है, सबसे पहली बात, एक जो राजस्थान या डेजर्ट एरिया में जो आजकल किया जा रहा है वो रेन वाटर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है. रेन वाटर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग की जा रही है. ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, जिसमें जो बारिश का पानी होता है उसको कंजर्व करके, बारिश का जो पानी होता है उसको रूफ से सीधे हम किसी टैंक में ले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे वाटर मैनेजमेंट, जहाँ पे उस वाटर को जब रेनी सीजन नहीं रहता तो यूज करते हैं. वो एक टैप में रख सकते हैं या एक हम अंडरग्राउंड एक रिजर्वायर बना के कर सकते हैं. राजस्थान के एरिया में, थार डिजर्ट वगैरह में बहुत ज्यादा किया जाता है बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्वेंटली रेनी सीजन नहीं होता है. ओके, सो एफॉरेस्टेशन परमिट्स डिस्चार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर.
एफॉरेस्टेशन अगर होगा वाटर मैनेजमेंट में, दूसरा पहला हो गया रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दूसरा है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटेशन ऑफ ट्री। जब प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ज्यादा होंगी तो अंडरग्राउंड वाटर का वाटर लेवल भी बढ़ेगा, वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट भी ज्यादा रहेगा और बारिश भी होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर फॉर द एग्रीकल्चरल यूज। ओके, in every city you can see the STP and ETP, sewage treatment plant and effluent treatment plant. The concept behind this kind of treatment plant is to collect all the wastewater from the city, domestic wastewater from the city, and treat them for the agricultural purposes. So there are there are a lot of machinery involved which have primary, secondary, and tertiary treatment, and these kind of treatment is used for our domestic water to convert into fresh water, which can be used for our agricultural purpose. We cannot drink that kind of water because उसमें drinking में बहुत ज़्यादा problem है। Drinking में हम अभी तक उसको drinking water बनाने के लिए lot of fund and lot of machinery is required, and we are not on that level. But Japan and China is doing this kind of work. They are treating domestic wastewater, converting into a drinkable form. ठीक है, बट हम लोग अभी नहीं कर पा रहे। प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनल्स, सम काइंड ऑफ वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स इन एग्रीकल्चर सच एज यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, pricing the water at its real value makes people use more responsibly and efficiently and reduce the water wasting. ठीक है, सो ये हो गया हमारा वाटर मैनेजमेंट। अब हमने आज डिस्कस किया वाटर मैनेजमेंट के बारे में, फ्लड के बारे में, ड्रॉट के बारे में, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, ठीक है, एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में, एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का बेसिक डिफरेंस हमने देखा यहाँ पे कि क्या क्या होता है। ठीक है, लेट मी टेक योर क्वेश्चंस। संजना, जो डेवलपमेंट है आप बॉटेनिकल गार्डन्स का पूछ रहे हो, बॉटेनिकल गार्डन्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप का कॉन्सेप्ट है। वन इज बॉटेनिकल गार्डन, सेकेंड इज योर sanctuary, third is national park. So you can see there is a botanical garden in Delhi. So the concept behind this to conserve the natural resources. जैसे क्या है, सपोज कोई प्लांट स्पीसीज खत्म हो रही है तो उस प्लांट स्पीसीज को ले जाकर के उस बॉटेनिकल गार्डन में लगा दिया गया। ठीक है, उसको अच्छे से अच्छे कंजर्वेशन किया गया जैसे कि वो वहां पे डेवलप हो सके, और अगर वो स्पीसीज कहीं खत्म भी हो जाती है तब भी उसके सीड्स को या उसके प्लांट को हम कंजर्व करके रख सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नेचुरल कंजर्वेशन। ठीक है, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स हैं, एंड दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर नो काइंड ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज अलाउड, ओनली अलाउड इफ द गवर्नमेंट परमिट्स। ओके, बट गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है क्योंकि उनको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि दीज आर द नेचुरल लैंड, एंड यहाँ पे जो भी सिस्टम है, जो भी इकोसिस्टम है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको उसी फॉर्म में रहने दिया जाए जैसे कि एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बना रहे। ठीक है, और इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। अभी जब मैं बायोडाइवर्सिटी की क्लास लूंगा नेक्स्ट में, जब आप लोगों का, अभी तो नेचुरल रिसोर्सेज का है, बायोडाइवर्सिटी की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ बोटेनिकल गार्डन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, उसमें है पूरा बोटेनिकल गार्डन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ, प्रीवियस क्लास में जो आपके टॉपिक्स हुए थे वो रिसोर्सेज नहीं थे, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपका इकोसिस्टम का पार्ट था। इकोसिस्टम के पार्ट में क्या क्या होते हैं, इकोसिस्टम में हमारे क्या क्या होता है। ठीक है, वहां पे फॉरेस्ट रिसोर्स की मैंने बात की थी, यहाँ पे वहां पे मैंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात की थी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, मे भी कुछ स्लाइड सेम नहीं होंगी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमारा प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है, और मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर अवेलेबल इन इंडिया, ये मैंने बताया था। मैंने रिसोर्सेज की बात नहीं थी किया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात नहीं किया था, वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं किया था, मैंने लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, वाटर इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, मैराइन इकोसिस्टम के बारे में, मैराइन इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, ये डिस्कस हुआ था। ठीक है, उधर पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर का कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ वहां पे दिया था वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम केवल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। अभी जब यूनिट 6 आपको मैं टीच कराऊंगा
तो उसमें है फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज के बारे में हम बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द लॉज, हाउ मेनी काइंड ऑफ लॉज आर अवेलेबल, कौन कौन से लॉ अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आएगा कि फिर फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है और कैसे वो करते हैं। आदित्य, आपका जो क्वेश्चन है, इफ दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सोइल स्टडी मटेरियल का जो है, नहीं सिलेबस देखिए आपका सेम है, वो 7 यूनिट्स आपको पढ़ना है, कुछ यूनिट पहले आप पढ़ रहे हो, कुछ यूनिट बाद में पढ़ रहे हो, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट कि यूनिट 2 यूनिट 3 हो गया, यूनिट 3 यूनिट 2 हो गया, क्योंकि कभी कभी है कि आपको पता लगा स्टडी मटेरियल मिला है उसमें, बट यूनिट आपको तो पढ़नी है ना, 7 यूनिट आपको पढ़ना है, टोटल कवर करना है, जिसमें अभी 3rd यूनिट चल रही है, ठीक। तो मे भी इकोसिस्टम कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसलिए पहले पढ़ाया जाए, जैसे आपको वो इकोसिस्टम के बारे में पता हो जाए, तब तो आप नेचुरल रिसोर्सेज समझोगे, नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता हो जाए, तब तो जाके आप बायोडाइवर्सिटी समझोगे। अब बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज समझना जरूरी है, जो कि यूनिट 4 है, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो एक आध 2 यूनिट आगे पीछे हो सकते हैं, बट सिलेबस एसओएल का स्टडी मटेरियल क्या है वो आपको जो मिला है, इसके लिए आप एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए भी आप मेरे पास ऋतिक कोई वो नहीं है, आप वेबसाइट चेक करते रहो और अपने एडमिन से बात कर सकते हो। हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो डिस्कस हुआ था वी आर डिस्कसिंग अगेन, लेकिन वहां पे मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं किया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ओके। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एंड व्हाट काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल हियर। नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स की होते हैं, एक हमारा है रिन्यूएबल, एक दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है, फूड रिसोर्सेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आई थिंक प्रेजेंट नहीं हो पाया, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। इसके बाद फिर नेचुरल रिसोर्सेज में आपका 2 है, एक रिन्यूएबल है, एक नॉन रिन्यूएबल है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सो दीज आर द रिसोर्सेज, काइंड ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज आपका आ जाता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है, यूज क्या है फॉरेस्ट का, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है। देखो कुछ अब वाटर रिसोर्सेज में तो फर्स्ट क्लास में भी आपको लिथोस्फीयर पढ़ाया, हाइड्रोस्फीयर पढ़ाया गया था, उसमें भी आपको बताया गया था, फर्स्ट क्लास में बताया गया होगा 67% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, वेयर दिस kind of this fraction amount this amount of water is available for our drinking purposes, but this data is again used फॉर व्हाट, बिकॉज अभी हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ईवीएस ये नहीं है कि केवल आपको फैक्चुअल है कि आपको 1.1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। 14/7 इज आल्सो इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि एग्जैक्टली हमको पढ़ क्या रहे हैं, हमारा यहाँ पे क्या यूज है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर टूडेज क्लास। जहाँ से आपको पूरा ये मटेरियल और ये सब मिलता है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, जैसे आपने एडमिशन लिया है आदित्य, ठीक है। बुक के लिए मैंने पब्लिश कर दिया है, फिर से ये जो बुक का क्वेश्चन आया है, बुक के लिए मैंने पब्लिश कर दिया है आपका यहाँ पे, तो आप, हाँ दृष्टि, आपने जो पूछा है, अगर इम्पोर्टेंट आप वो इससे जो अराइज होता है क्वेश्चन, वो ये होता है कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, हाउ मेनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट हियर on the earth's surface, these are renewable and non-renewable, what is the basic difference in between renewable and non-renewable, and describe some amount some resources जैसे कि land resources या water resources या forest resources के बारे में आपको describe करना है exactly, ठीक है। so ये आपका concept होता है, एक मिनट। so this is about today's class, I hope कि आप लोगों का दूसरा भी क्लास होगा, अगर नहीं है क्लास तो आप काइंडली मेरे को लिख के बताइए, यू डोंट हैव अनदर क्लास, तो मैं अभी और कंटिन्यू करूँ फिर 10 मिनट 10 to 15 मिनट्स में अगर कर सकूँ तो। आप लोगों को का क्लास है अभी नेक्स्ट 4 to 5 कोई क्लास है या नहीं है, काइंडली कोई भी बता दे।
दीपक मैं एडमिन को बोल दूंगा जो ईवीएस के हैं, अगर आप लोगों को शेयर की जाती है। आप लोगों का एक फेसबुक पेज भी बना हुआ है, जैसे आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। और बाकी आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, वो वेबसाइट पे है एसओएल का। डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लीशन का मतलब हो रहा है जो चीज खत्म हो रहा है, जो चीज डिग्रेड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन। दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लीशन, ठीक है। ठीक है। किसी की क्लास है, किसी की नहीं है, ऐसे मेरे को मैसेज आया है, तो नो इश्यू, आप लोग अपनी क्लास अटेंड करिए, ठीक है। नहीं है, क्लास है, किसका क्लास है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने लिखा है क्लास नहीं है, और कुछ ने लिखा है क्लास है। तो देखो अभी मैं आपका बस थोड़ा सा और टाइम लूंगा, जिनकी क्लास है फिर वो उनको इशू होगा कि फिर से पढ़ाया जाने के लिए, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पे ये है कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, और उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ठीक है। क्लासेस हैं किसी की, कोई बोल रहा है। तो स्टूडेंट अभी मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सिलेबस है आपके पास ऑलरेडी, सिलेबस जो एसओएल की तरफ से प्रोवाइडेड है, सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपली गूगल इट, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स गूगल इट, केवल आगे केवल आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ये आपका एसीसी कोर्स है कि व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना रिसर्च में, बट आपको पता होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ रिसोर्सेज के बारे में, जैसे लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा जब भी क्लास होती है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल अंडर और बायोस्फीयर, तो ये आपको नोन होना चाहिए। अब जब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, सेकंड यूनिट की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आता है हमारा वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो आप कंफ्यूज हो रहे हो वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जस्ट लेट मी सो यू। जो आप लोग कह रहे हो उसमें आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर वो हाँ, यूनिट 2 इकोसिस्टम में, यूनिट 2 इकोसिस्टम है आपका, और यूनिट 2 इकोसिस्टम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। इफ यू हैव टाइम, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं क्लास है, उनको क्लास करना है, तो वेट, ठीक है, आप लोग क्लास में जाइए। आई डोंट वांट टू टेक सो मच ऑफ योर टाइम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यूनिट 1.1, यूनिट 1.2, ओके, यूनिट 2 इकोसिस्टम। तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स की नेचुरल रिसोर्सेज आर में 2.1 इकोसिस्टम। food web and food chain, and this is about the biogeochemical cycle. ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही जैसे यूनिट एक आपका और है, ठीक है प्रीति, नहीं है कुछ लोगों का है। जैसे एक यूनिट और आपका है जिसमें कि यूनिट 7 है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में बताया जाएगा एंड उसके बारे में बताया जाएगा। तो वहां पे आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, फिर इसी के बारे में डिस्कशन होगा, फिर इसी के बारे में डिस्कशन ये होगा कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में या सरफेस पे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो उसमें भी हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात आएगी, फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉस कितने, इन सब के बारे में बात होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट मैं अभी क्लास को क्लोज करता हूँ, बिकॉज आप में से किसी का है किसी का नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी जो भी क्वेरीज है ना, आप वो लेके आइएगा, और पहले ही मेरे से आप आस्क कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही ये नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है। सो राइट नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।